بدلہ لینے کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب طویل انتظار اور پوری منصوبہ بندی کے بعد کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔ یہ میرے نہیں، کیٹ کے خیالات ہیں جن کا اظہار وہ 2 مواقع پر کر چکی ہے، سوائے اتفاق کے کہ دونوں مرتبہ ہم ساتھ بیٹھے بیئر پی رہے تھے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اب کیٹ سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ 2 دن قبل وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ایریزونا آئی تھی۔ شاید وہ یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس دوران اس کی دوست اینجلا یعنی کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوں، یا پھر وہ مجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ان گزرے ہوئے ماہ و سال میں اس پر کیا بیتی ہے۔ میں اس وقت 2 روز پہلے کیٹ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہم لگ بھگ 30 سال بعد ملے تھے۔ کہنے سننے کو بہت کچھ تھا، لیکن کیٹ گھوم پھر کر اسی ایکسیڈنٹ کی طرف آ جاتی جو 30 سال پہلے ایلینوائے میں ہوا تھا۔ وہ ایک خوفناک اور جان لیوا حادثہ تھا اور سب کچھ جولی کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ جولی کا ذکر کرتے ہوئے کیٹ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات ابھر آتے اور آنکھوں سے نفرت بھری چنگاریاں چھوٹنے لگتی۔ میں کچن کاؤنٹر میں بیٹھی ڈنر کر رہی تھی، لیکن میرا ذہن ماضی کے دھندلکوں میں بھٹک رہا تھا۔ میرے سامنے مختلف قسم کے جارز اور پلیٹیں پڑی تھیں اور اس کے ساتھ ہی تنہائی کا احساس بھی موجود تھا۔ گزشتہ سے پیوستہ یادیں میرے دماغ کی اسکرین پر چل رہی تھی۔ 2 دن قبل میں نے اسی جگہ پر کیٹ کے ساتھ بیئر پی تھی اور یادیں ماضی کو تازہ کیا تھا۔ میں اکیلی پینے کی عادت نہیں تھی، لیکن جب سے کیٹ گئی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرا سب کچھ لے گئی ہو۔ میں گویا اپنے آپ میں نہیں رہی۔ یہ پہلی بار تھا کیٹ کے جانے کے بعد میں اکیلے بیٹھ کر پینے لگی تھی، جیسا کہ ابھی۔ بیئر کا مگ میرے ہاتھ میں تھا اور میں کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ رات کی ابتدا تھی، باہر فضا اتنی تاریک نہیں تھی جتنا اندھیرا میرے اندر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور کچن کے اندر آ گئی۔ میری نگاہ کے سامنے کئی ایک جار موجود تھے۔ میں نے مینگو سالسا کا جار اٹھایا اور بغور سے دیکھنے لگی۔ اسی لمحے مجھے یاد آیا کہ 2 دن پہلے یہی جار کیٹ کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کے ساتھ کافی دیر تک کھیلتی رہی۔ 1-2 بار اس نے جار کھول کر بھی دیکھا تھا، مگر اس سالسا کو کھایا نہیں۔ کیٹ کے جانے کے بعد میرا دماغ منتشر اور دل بوجھل ہو گیا۔ میں دکھ اور پچھتاوے کے ملے جلے احساسات کے نیچے خود کو دبا محسوس کر رہی تھی۔ آپ اسے ایک طرح کا احساس ندامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو ہو چکا تھا۔ بیتے ہوئے وقت کو واپس لانا میرے اختیار میں نہ تھا اور نہ ہی کسی اور کے بس میں۔ کیٹ اور اس کی فیملی جن حالات سے گزری تھی، اس کے لیے صرف جولی ہی کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں تھا۔ بشمول میرے ہم سب ذمہ دار تھے۔ اب جب کیٹ نے انتقام کی بات کی تھی تو مجھے لگا تھا کہ وہ 30 سال پہلے والی کیٹ ہے جو اب تک انصاف کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ ہائی اسکول کا زمانہ تھا۔ ان دنوں میں بھی ایلینوائے میں ہی ہوا کرتی تھی۔ کیٹ میری کلاس فیلو تو نہیں تھی، مگر اس وقت بیئر سے شغل کر رہے تھے جب کیٹ نے پہلی مرتبہ انتقام کے حوالے سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ انتقام سے زیادہ لذیذ اور اطمینان بخش اور کوئی ڈش ہو ہی نہیں سکتی، اس نے خوابناک لہجے میں کہا، اور اس کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب پوری منصوبہ بندی کے بعد کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔ اس وقت میں یہی سمجھی تھی کہ یہ سب کیٹ کے باپ کی ایک گھٹیا حرکت کا نتیجہ ہے۔ 1 دن پہلے ہی کیٹ کا باپ اسے اور اس کی ماں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ میں اس روز کیٹ کے بلانے پر ہی آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر کے اندر اس کا دم گھٹ رہا ہے، وہ کھلی فضا میں سانس لینا چاہ رہی تھی۔ اب ہم ایک ساتھ بیٹھے پی رہے تھے۔ کیٹ گزشتہ روز والے واقعے کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتا چکی تھی۔ جب اس کا باپ مسٹر ایلسن انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا تو دونوں میاں بیوی کے درمیان خوب جھگڑا ہوا تھا۔ کیٹ کی ماں مسز ایلسن بہت چیخ چلائی تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد مسز ایلسن پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں موجود چیزوں کو اٹھا کر ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ اس نے مختلف مقامات پر لگے ہوئے آئینے توڑ ڈالے اور خود کو زخمی کر لیا۔ ماں کی اس دماغی حالت نے کیٹ کو بری طرح متاثر کیا۔ میں اس کے ہاتھ سے قریب تھی، اس لیے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس نے مجھے ہی بلا لیا۔ مجھے اپنی بیتا سناتے ہوئے وہ مسلسل بیئر پی رہی تھی۔ میں کیٹ کو بچپن ہی سے جانتی تھی، مگر ہماری تعلیم الگ الگ اسکول میں ہوئی تھی۔ اس کا سب سے بڑا سبب معاشی تفاوت تھا۔ کیٹ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جو میری طرح بڑے اسکولز کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو کپڑے اور جوتے بھی سیکنڈ ہینڈ ہی خرید کر پہنا کرتی۔ اس سب کے باوجود وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں اکثر و بیشتر اس کے گھر بھی جایا کرتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مسز ایلسن مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ میرے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتی تھی اور میرے بارے میں اکثر یہ کہا کرتی، اینجلا میری دوسری بیٹی ہے۔ میں جب بھی کیٹ کے گھر جاتی تو اس کی ماں ڈنر کیے بغیر مجھے واپس آنے نہیں دیتی، جبکہ اس کا شوہر یعنی کیٹ کا باپ مسٹر ایلسن ہمیشہ اپنی بیوی کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ ایک بےہودہ اور بدتمیز شخص تھا، صرف دوسروں کے جذبات اور احساسات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف خود کے لیے ہی جینے والا انسان تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ستمبر کے ابتدائی ایام تھے۔ موسم گرم اور ہوس زدہ تھا۔ دریا کے کنارے پر واقعی ایک محفوظ مقام تھا جہاں ہم سگریٹ نوشی اور بیئر نوشی پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتے تھے۔ ہم ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہمیں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایسے ہی محفوظ ٹھکانوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بری طرح زخمی کر لیا ہے۔ کیٹ سگریٹ کا ایک طویل کش لگانے کے بعد بوجھل آواز میں بولی،
डैड के जाने के बाद इस पर दीवानगी तारी हो गई थी। ऐसे में एक आईने पर मुक्के बरसाते हुए इसका हाथ कट गया। क्या तुमने अपनी मॉम के जख्मी हाथ पर मरहम पट्टी करवाई? मैंने पूछा। हाँ, मैंने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया था। इसने जवाब दिया, अब सब ठीक है। क्या मिसेस एल्सन तुम्हारे डैड को कोर्ट में घसीटेगी? मैंने पूछा। मेरा मतलब है तलाक के लिए। वो ऐसा चाहती तो है, मगर केट ने बोझल आवाज में जवाब दिया, वो वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती और इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब भी है। मैंने गहरी सांस खारिज की मगर कहा कुछ नहीं। जब वो घर छोड़कर जा रहा था तो इसने माम के साथ मारपीट भी की। वो खला में घूरते हुए बड़े अज़्म से बोली, मेरा जी चाहता है कि मैं चाकू की नोक से इसके पूरे बदन को कोट डालूं। ये सच बताते हुए केट का गुस्सा आसमान को छू रहा था। इसके जिस्म पर हल्का सा लर्जा भी तारी था। इस वक्त हम महज 17 साल की थी, इसलिए मैं और केट मामले को ज्यादा सीरियस नहीं ले सकते थे। मेरा पूरा ध्यान कानून की पढ़ाई पर लगा हुआ था। मुझे केट से हमदर्दी तो थी, मगर इसके मसाइल में उलझ कर अपने मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं कर सकती थी। इस वक्त मैं इस मूवी के बारे में सोच रही हूँ। केट ने नई सिगरेट सुलगाने के बाद खतरनाक लहजे में कहा, इस मूवी में एक शख्स किसी खतरनाक आर्ज़े कल्ब में मुब्तला हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो एक माह से ज्यादा नहीं जी सकेगा। ये जानकर इसकी जिंदगी का चिराग बुझने वाला है। वो इस आदमी की तलाश में निकल खड़ा होता है जिसने इसकी बीवी को कत्ल किया होता है। अब इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो अपनी बीवी के कातिल को मौत के घाट उतारने के बाद सुकून और इत्मीनान के साथ इस दुनिया से उठने का फैसला कर लेता है। मगर तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है केट। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर गहरी संजीदगी से कहा, इसलिए जज्बात में आकर कोई अहमकाना कदम नहीं उठाना। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे डैड को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होगी। एक दिन? वो मेरे अल्फाज को हिजानी अंदाज में दोहराते हुए अजीब से लहजे में बोली। हाँ, एक दिन, मतलब काफी अरसे बाद। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिल का मरीज वो शख्स अपनी बीवी के कत्ल के 20 साल बाद इसके कातिल से इंतकाम लेने के लिए घर से निकला था। इतना अरसा गुजर जाने के बाद इसकी याददाश्त से कातिल की शक्ल महव हो गई थी। तो फिर इसके शोहर ने क्या किया? मैं पूछे बिना ना रह सकी। कुछ भी नहीं, वो सरसरी अंदाज में बोली। वो एक होटल के बार में पीने लगा। वहीं पर एक होशियार बिजनेसमैन से इसकी मुलाकात हो गई। वो भी किसी बिजनेस डील में धोखा खाने के बाद इस बार की तरफ आया था। इस बिजनेसमैन ने दिल के मरीज की कथा सुनने के बाद इसे ये मशवरा दिया था, इंतकाम से ज्यादा लजीज और इत्मीनान बख्शिश और कोई हो ही नहीं सकती, बशर्ते कि तहम्मुल और सब्र से काम लिया जाए। अगर तुम जज्बाती होकर सोचोगे तो एहतियात का दामन हाथ से निकल जाएगा, जिसमें सरासर नुकसान तुम्हारा ही होगा। लिहाजा जो भी कदम उठाना चाहते हो इसके लिए जानदार मनसूबाबंदी करो। मेरे ख्याल में इस बिजनेसमैन ने बड़े पते की बात की थी। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, वक्त गुजरने के साथ रफ्ता रफ्ता चीजें खुद बहुत अपनी जगह पर आने लगती हैं। मैं भी किसी खास मौके का इंतजार करूंगी, केट ने ठोस अंदाज में कहा। केट के इस अंदाज पर एक नामालूम सी सिफाकी पाई जाती थी। इस वक्त मैं केट के जज्बात को कोई नाम ना दे सकी। बाहर क्या, इसकी आंखों में मुझे समंदर मौजूदन दिखाई दिया। सूरज मगरबी उफक पर पूरी तरह झुक चुका था। तो केट ने इसराइल लहजे में कहा, मुझे वापस जाना चाहिए। मॉम घर में अकेली है और हमें भी। ठीक है, मैंने अपने नए मॉडल की कीमती कार स्टार्ट करते हुए कहा, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगी। केट का घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने इसे गेट के सामने उतार दिया। इसने मुझे घर के अंदर चलने को नहीं कहा। अगर वो ये पेशकश करती तो भी मैं कोई खूबसूरत बहाना करके टाल देती। सच्ची बात यह है कि मैं इस वक्त मिसेस एल्सन का सामना नहीं करना चाहती थी। इस सितम ज़रीफ औरत से कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। वैसे भी आज रात मुझे जूली के साथ एक पार्टी में जाना था। मुझे यकीन था कि केट खुद को संभाल लेगी। मैं मैंगो सालसा के जार को घूरते हुए मुसलसल केट के ही बारे में सोच रही थी। कमोबेश 30 साल बाद हमारी मुलाकात हुई थी। इस दौरान मैंने अपनी कानून की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और इस वक्त एक कामयाब और नामवर वकील की हैसियत से अपना पेशा वाराना काम जारी रखे हुए थी। मैं केट को पूरे तवज्जो से सुन रही थी। इसकी गुफ्तगू का महब और मरकज इंतकाम ही था, एक सिफाक और बेरहम इंतकाम। इसके हर तीसरे जुमले में कत्ल का लफ्ज़ शामिल होता और इस लफ्ज़ की अदायगी के बाद इसके चेहरे और आंखों में एक वहशतनाक चमक साफ देखी जा सकती। केट से होने वाली ये मुलाकात मुझे किसी ख्वाब की मानंद महसूस हो रही थी और इस ख्वाब का आगाज हफ्ता भर पहले हुआ था। इस दौरान में कभी कभार इससे मेरी फोन पर तो बात हो जाया करती थी, मगर रूबरू मिले एक तवील अरसा गुजर चुका था। जहां तक मुझे याद है कोई साल भर पहले आखिरी मरतबा इससे बात हुई थी। एक हफ्ता कबल इसने मुझे कॉल की तो इसकी आवाज़ में मुझे बला का एतमाद और ठहराव महसूस हुआ था। तुम्हारी सेहत कैसी है केट? मैंने पूछा। मैं ठीक ठाक हूँ और इस वक्त हाईवे पर ड्राइव कर रही हूँ, इसने जवाब दिया। समझ लो कि कैलिफोर्निया के करीब हूँ, इसके बाद एरिजोना की तरफ रुख करूंगी। वेरी गुड, मैंने कहा और पूछा तुम्हारी मॉम कैसी हैं? इन दिनों जैसा कि मैंने शुरू में बताया मैं एरिजोना में थी और ये स्टेट कैलिफोर्निया से जुड़ी हुई है, इसने मेरे सवाल के जवाब में बताया। मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। मॉम के दुनिया से जाते ही मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैं इसी वजह से तुम्हारे पास आ रही हूँ। अंजला, फोन पर केट ने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं इसको दुख को समझ सकती थी। इस दौरान में यकीनन वो बहुत सी तकालीफ से गुजरी होगी।
मैं वसूख से नहीं कह सकती कि अब वो कैसी लगती होगी। 30 साल पहले वो हद से ज्यादा दुबली पतली लड़की हुआ करती थी। अपने इसी मज़हका हेज दुबलापन को छुपाने के लिए वो अपने साइज से कहीं ज्यादा खुले कपड़ा पहना करती। 2 रोज कबल केट की आमद पर मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। इसकी आंखों के गिर्द से हल्के और चेहरे पर छाई हुई मूर्धनी के अलावा सेहत के दीगर मामलात एकदम तशवीशनाक थे। इसने इंतहाई जदीद तर्ज का लिबास तन कर रखा था जो इसके बदन पर खूब जच रहा था। अब वो सिर्फ एक दुबली पतली लड़की नहीं बल्कि गए गुजरे जिस्म की मालिक एक मॉडर्न और फैशनेबल औरत नजर आ रही थी। साहिब सरवत ख़वातीन की तरह इसने अपने एक हाथ में छड़ी पकड़ रखी थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, हाँ ये बात तुम मेरे लिबास के बारे में कह सकती हो क्योंकि ये हासा कीमती है। वो अपने पहनावे की जानिब इशारा करते हुए बोली, मगर मैं एकदम बोर और वाहियात हूँ। इस मॉडर्न ड्रेस में मैं एक कार्टून नजर आ रही हूँ। जब मैं केट से मुआनका कर चुकी तो मैंने ड्राइव वे से एक सियाह लेक्सस कार खड़ी देखी। केट इसी गाड़ी में यहाँ आई थी। बेसाता मेरे मुंह से निकला, ये कीमती कार तुमने कब खरीदी केट? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। वो जल्दी से बोली, ये लेक्सस किराए की है। तवील सफर ने इसका हाल बेहाल कर दिया है। हम बातें करते हुए सिटिंग रूम में आ गए। वो मेरे अपार्टमेंट की एक एक शय को बहुत गौर से देख रही थी। दीवारों पर लगी हुई कीमती पेंटिंग, शेल्फ पर रखे हुए फोटो फ्रेम्स और ऐसी दीगर अशिया। इसने डाइनिंग रूम में आते ही एक फोटो फ्रेम की जानिब इशारा करते हुए मुझसे पूछा, ये लोग कैसे हैं? इस फोटो में मेरे वालिदैन थे। मैंने केट के इस्तफसार में जवाब दिया, डैड तो अब भी ज्यादा वक्त अपनी बोट पर ही गुजारते हैं और माम अब भी अपनी सेहत के बारे में बेहद परेशान रहती हैं। वो अपने अंदर ऐसी ऐसी बीमारियों की खोज में मसरूफ रहती हैं जिनका दर हकीकत कोई वजूद है ही नहीं। अब भी इसने मानी है अंदाज में मेरे अल्फाज दोहराए, ऐसा कैसे मुमकिन है? इसकी बात मेरी समझ में नहीं आई तो मैंने सवालिया नजर से इसे देखा। इसने मेरी निगाह की परवाह किए बगैर एक दूसरा फोटो फ्रेम उठा लिया। वो एक ग्रुप फोटो था जिसमें मैं भी मौजूद थी। ये तुम्हारे साथ दूसरे लोग कौन है? इनमें से ज्यादातर मेरे कोलीग्स हैं। मैंने फहरिया लहजे में केट को बताया, हमने अपने फर्म के लिए एक बहुत ही मालदार क्लाइंट का केस जीता था जिससे माली मनफत के साथ हमारी फर्म का नाम भी बुलंद हुआ था। इस खुशी के मौके पर यह फोटो लिया गया था। एंजेला, तुम्हें अजीब सा तो लग रहा होगा, मैं तुम्हारे ज़ाती मामलात पर सवाल कर रही हूँ। वो माज़ खाना लहजे में बोली, बस तुम्हारी तरक्की और कामयाबी देखकर मैं खुद पर काबू न रख सकी और मैंने तुमसे इस तरह के सवालात करना शुरू कर दिए। आई एम सॉरी, इट्स ओके। मैंने साहब को का मुजाहरा करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे किसी भी सवाल का माइंड नहीं किया। आखिरकार हम दरीना सनाशा हैं। दरीना सनाशा? वो ज़ेरेला मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम यूं ही बातें करते हुए किचन में पहुंच गए। मेरे किचन में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। वो हर एक चीज़ का बगौर जायजा लेते हुए एक अलमारी के पास पहुंची जिसमें मैंने मुख्तलिफ बर्तन सजा रखे थे। मज़कूरा अलमारी की तैयारी में कीमती शीशे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया था। इसने अपनी हैंड स्टिक की नोक को इस अलमारी के बालाई शेल्फ में रखे एक कॉफ़ी मग पर टिकाया और मेरी जानिब देखते हुए बेयकीनी से कहा, मुझे हैरत हो रही है कि तुमने इस मग को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। ये मग तुम्हारी मॉम ने मुझे तोहफे में दिया था। मैंने कहा, मिसेस एल्सन मुझे अपनी दूसरी बेटी समझती थी, हालांकि हम तो सिर्फ दोस्त थी। इसने बेतासुर नज़र से मुझे देखा, है ना एंजेला? हाँ बिल्कुल, मैंने जल्दी से कहा। बातें तो होती रहेंगी केट, मैंने मुअत्तिल अंदाज में इजाफा किया। क्यों ना हम कुछ खा पी लें? क्यों नहीं, ज़रूर, वो ज़ेरेला मुस्कुराते हुए बोली। मैं फ्रिज में से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल कर इन्हें माइक्रोवेव में रेडी करते हुए सोचने लगी। हम जब इलिनॉय में साथ हुआ करते थे तो मैं इस वक्त अपने घर बुलाने से परहेज़ किया करती। इसका सबसे बड़ा सबब हमारे बीच में पाया जाने वाला माशी और माशरती तफावत था। मैं इसे अपने घर बुलाकर इसके महसूसात को मजरू नहीं करना चाहती थी, इसलिए हम मुख्तलिफ बार और रेस्टोरेंट वगैरह में मिल लिया करते ताकि किसी भी मौके पर इसे एहसास कमतरी जैसा कुछ एहसास ना हो। केट, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया को किचन के काउंटर पर सजाते हुए पुरमसरत लहजे में कहा, आज खास तौर पर मैंने तुम्हारी फेवरेट बियर का बंदोबस्त भी किया हुआ है ताकि मुलाकात को यादगार बनाया जा सके। केट चल लम्हे तक बियर की बोतल को घूरती रही। मैं समझ नहीं पा रही कि इस वक्त केट के जहन में क्या चल रहा था। इसका चेहरा सपाट और आंखें बेतासुर थी। इसने खामोशी को तोड़ते हुए अजीब लहजे में से कहा, मैं दरअसल शराब पीना चाहती हूँ। मैंने बेसाहता एक कहका लगाया और हैरत भरी आवाज़ में कहा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम बियर की बजाय वाइन लेना चाहोगे। मैंने इस जैसे अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ कर ली हैं वैसे भी। वो बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मैं बस इतना कह सकी, अच्छी तब्दीली है। मैंने वाइन की बोतल और 2 जाम उठाए और गैलरी की तरफ आ गई। यहाँ से खुला आसमान बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा था जो इलिनॉय की यादों को ताज़ा कर देता था। एक चौबी बेंच के पास केट रुकी। इस बेंच के सामने एक स्टैंड पर एक बुद्धा का छोटा सा संगीत मुजस्समा रखा हुआ था। एंजेला, केट ने बुद्धा की जानिब इशारा करते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मजहबी हो गई हो। मैं बुद्धा के सामने इस चौबी बेंच पर बैठकर मुराकबा करती हूँ। मैंने वाइन की चुस्की लेते हुए केट को बताया, इर्तिकाज़ तवज्जो की ये मशक मुझे अंदरूनी इंतशार से निपटने में मदद देती है। मेरा जहन बिल्कुल हाली और पुरसुकून हो जाता है। मैंने जहनी सुकून के हसूल के लिए कभी मराका नहीं किया। शायद मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए कभी ध्यान नहीं किया। बातें करते हुए हम दोनों चौबी बेंच पर बैठ गए। केट ने एक नैपकिन से अपनी गर्दन का पसीना पूंछते हुए अजीब से लहजे में कहा, सॉरी एंजेला, मेरे साथ ये मसला काफ़ी अरसे से है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, शायद ये गर्मी के बायस है। नहीं, वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, इसका गर्मी और सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। बोलते बोलते इसे खांसी आ गई। ये कुछ और है।
اس نے پھولی ہوئی सांस के साथ कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने अंदाजा लगा लिया होगा. मुझे कोई अंदाजा नहीं है कैट, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा. तुम बताओ तुम्हारी सेहत के साथ ये क्या मामला है? एक सीरियस फैमिली इशू है एंजेला. वो बर्राई हुई आवाज़ बोली, मुझे कैंसर है. मेरे जहन को एक झटका सा लगा. माजी में मेरा इसके घर जाना होता था लेकिन ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं थी. केट के इंकशाफात ने मुझे हिला कर रख दिया. मैंने अपनी मालूमात के लिए डरते डरते पूछ लिया, तुम्हें किस किस्म का कैंसर है? ओवरी का कैंसर. इसने बहुत जल्द लहजे में जवाब दिया. इसका आगाज दोनों ओवरीज से हुआ था, अब ये पूरे बदन में फैल चुका है सिवाय फेफड़ों के. यही वजह है कि मैं अभी तक सांस ले पा रही हूँ. बात के अख्ताम में इसने अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया. मैं कभी केट को और कभी सिगरेट के पैकेट को देखती. तुम्हें कब पता चला कि इस मोजी मर्ज की गिरफ्त में आ चुकी हो? मैंने पूछा. कमोबेश 9 माह पहले, इसने जवाब दिया. मैं तुमसे मिलकर ये सब कुछ बताना चाहती थी इसलिए फ़ोन नहीं किया और खुद यहाँ चला आई. क्या तुमने कीमो कराई है? करा रही हूँ, मगर 2 माह पहले मैंने ये थेरेपी रोक दी. इसने बताया. मेरा जिस्म इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इसलिए मुतबादिल अद्वियात इस्तेमाल कर रही हूँ. कैंसर का इलाज बहुत महंगा है. मैंने इस अंदाज में कहा कि उसे बुरा महसूस ना हो. तुम ये सब किस तरह अफोर्ड कर रही हो? क्रेडिट कार्ड्स. वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोली. मुझे जब इस बीमारी का पता चला मैंने दर्जनों क्रेडिट कार्ड बनवा ली, बस इधर से उधर घुमा रही हूँ. लेकिन ये सिलसिला ज्यादा अरसा तक नहीं चल सकेगा. मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा. एक दिन तुम डिफाल्टर हो जाओगी और बैंक वाले तुम्हारी जान अजाब में कर देंगे. पहले मेरी जान कौन सी राहत में है एंजेला? वो तंजिया लहजे में बोली. डैड हमें बेसहारा छोड़कर चले गए. माँ इस घर की किस्तें अदा करते करते इस दुनिया से चलेगी. मैं भी एक दिन चली जाऊंगी. बैंक वाले तो शायद मुझे छोड़ दें मगर इस बीमारी को मुझ पर रहम नहीं आएगा. तुम्हारी बीमारी का सुनकर मुझे अफसोस हुआ केट, मैंने हमदर्दी के लहजे में कहा. मैं तो तकलीफ उठाने की आदी हो चुकी हूँ एंजेला, वो ज़हर खुंद लहजे में बोली. फिर अपनी नकली टांग की जानिब इशारा करते हुए कहा. तुम्हें कार का वो हादसा तो याद होगा ना? एक लम्हे में इस खौफनाक हादसे का मंजर मेरी निगाह में घूम गया. मैं अपनी जगह से उठी और फरते जिस बात में केट को सीने से लगा लिया. मैं काफ़ी देर तक इसे थपती रही. मेरे दिलासे ने इसे जल्द ही नॉर्मल कर दिया. आइंदा आधे घंटे में इसने मुझे अपनी बीमारी और इलाज के बारे में तफसीलन बता दिया. इसके साथ ही केट ने मुझे एक नाकाबिले यकीन बात बता दी. डैड हमें मुश्किलात में गिरा छोड़कर चले गए थे. वो सिगरेट का एक तवील कश लेने के बाद बोली. लेकिन मैंने इन्हें ढूंढ निकाला. ये तुम क्या कह रही हो केट? वो एक इत्तेफाक था एंजेला. वो बेपरवाही से बोली. 3 साल पहले हम एक सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक आमना सामना हो गया. वो इन दिनों अपनी नई बीवी के साथ कैलिफोर्निया में थे. वो काफ़ी अमीर औरत है. ओह, मैंने गहरी सांस ली और पूछा. इसके बाद क्या हुआ? मेरा मतलब है कि तुम्हारी अपने डैड से मुलाकात होती रहती है? हाँ, कभी कभार, इसने गोल मोल सा जवाब दिया. क्या तुमने इन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताया है? मैंने पूछा. मैं तो सालों से बीमार चली आ रही हूँ, वो ख्वाबनाक लहजे में बोली. मुझे यकीन है डैड को मेरे हालात की पूरी खबर है. मैं तुम्हारे कैंसर वाले मामलात की बात कर रही हूँ केट. हाँ, मैंने इन्हें वो बता दिया है. इसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा. मैंने उलझन ज़्यादा लहजे में कहा. मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुमने मिस्टर एल्सन से राब्ता बहाल क्यों किया. इसने तुम माँ बेटी के साथ जो सलूक किया वो मेरे डैड हैं. वो कतई कलामी करते हुए बोली. मैं ये जानना चाहती थी कि इन्हें अपने किए पर नदामत है या नहीं. बाज़ लोग इस वक्त बदल जाते हैं जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है. तो तुम जो जानना चाहती थी वो तुम्हें मालूम हुआ या नहीं? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा. इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. मैंने भी जिद नहीं की. हमारे बीचों बीच चंद लम्हे खामोशी रही. फिर इसकी ससराती आवाज़ मेरी समात तक पहुंची. जब डैड से मेरा रब्ता हुआ इन्हीं दिनों मैंने माजी के दोस्तों से मुलाकात के बारे में भी सोचा ताकि पता तो चले कौन कहाँ किस मुकाम पर पहुंच चुका है. तो बड़े मज़े से मुझे बता रहे थे. अगरचे ये अहमकाना आइडिया था लेकिन अपनी इस मुहिम जोई में मैं इस तक पहुंच ही गई जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था. वो उधर कैलिफोर्निया में है एंजेला. अगरचे केट ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन मैं समझ गई कि वो जूली का जिक्र कर रही है. जूली से केट की सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी. जूली दरअसल मेरी दोस्त थी और मैंने ही इसे केट से मिलवाया था. मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं था मगर जूली की एक संगीन हमाकत ने केट की जिंदगी में जहर घोल दिया था.